फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि पता है, अभी महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन निकला है और 12 या 15 जनवरी से फॉर्म फिलअप की लिंक भी आ जाएगी। अगर आप सेट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। और उसमें पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के एक दो राइटर पे क्वेश्चन तो बनते ही हैं। उसमें बहुत से ऐसे राइटर हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, उनके नाम की लिस्ट भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक शॉर्ट सिनॉप्सिस में हम पढ़ेंगे कि कौन से राइटर बहुत इम्पोर्टेंट है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के, जो हमेशा पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ उनके जो फेमस वर्क है वो भी पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। नो, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर? Post modern literature, it is a literary movement that absolute meaning and instead emphasize play, fragmentation, metafiction, intertextuality. So the literary movement rose to prominence in late 1950s and 1960s, a reaction to modernist literature's quest for meaning in light of significant human rights. So the common example of postmodern literature include the Gravity's Rainbow. अगर हम एक कॉमन वर्क का एग्जाम्पल लेते हैं पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में, तो वो है ग्रेविटीज़ रेनबो बाय थॉमस पिंचन। देन स्लॉटर हाउस 5 है बाय कर्ट वैनगेट, और कैच 22 है जोसेफ हेलर का। सो लिटरेरी theories that criticize or postmodernity in literature include Roland Barthes, Jean Baudrillard, Jacob Derrida, George Louis Burgos, Frederick Jameson, Michel Foucault, and Jean Francisco Lytton. So these are the very important writers. So what are the origin of postmodern literature? Postmodern literatures are precursors of modernist literature, and they emphasize on a quest of meaning, suggesting the author as an enlightenment style creator of order and mourning the chaotic world. Example include the James Joyce, T.S. Eliot, and Virginia Woolf. So, however, after the series of human rights violation that occurred during the after World War II, Japan, there is atomic bombing on Japan, Japanese internment, and the US. So, writer began to feel as if meaning was an impossible quest. So, thus, postmodern literature rejected or built upon many of the tenets of postmodernism, including shunning meanings, intensifying, celebrating fragmentation and disorder. तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर के। पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर बिल्ड्स ऑन द फॉलोइंग कोर आइडियाज़। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिस पे बेस करता है मॉडर्न लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। एम्ब्रास ऑफ रैंडमनेस, पोस्ट मॉडर्न वर्क्स रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट मीनिंग। वो एब्सोल्यूट मीनिंग के आइडिया को रिजेक्ट करते हैं, इंस्टेड एम्ब्रास द रैंडमनेस एंड डिसऑर्डर। Postmodern novels often employ unreliable narrators to further muddy the water and extreme subjectivity. Then second उसका अगर हम characteristic देखें तो वो है playfulness. While modernist writers mourn the loss of order, postmodern writers revel in it, often using the tools like black humor, wordplay, irony, and other technique, playfulness to dizzy readers and muddle the story. So the playfulness, it is another characteristics of postmodern literature. Then fragmentation. Postmodern literature took postmodernism fragmentation and expanded on it, moving literary work more toward college style form and temporal dissertation. उसके बाद और एक आता है वो है मेटाफिक्शन. Now the postmodern literature emphasize the meaninglessness play. Okay, postmodern writers began to experiment with more meta element in their novels and short stories, drawing attention to their work artifice and reminding readers that the author isn't authority figure. उसके बाद और एक कैरेक्टरिस्टिक्स है पोस्ट मॉडर्निज्म का या पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर का, इंटरटेक्चुअलिटी. एज अ फॉर्म ऑफ कॉलेज स्टाइल राइटिंग, many postmodern authors wrote their work wordly in dialogue with other texts. Form of collage style writing, many postmodern authors wrote in collage style writing work overtly in dialogue with other texts. The techniques they employ including pastiches, patches, and the combination of high and low culture. देन द 10 नोटेबल ऑथर्स हम देखेंगे जिनके वर्क्स कौन से फेमस है, किस वर्क को हमें पढ़ के जाना है. उसमें पहले आते हैं जॉन बार्थ. बार्थ रोट अ एसे ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म
titled The Literature of Exhaustion, dealing all writing as imitation and considered by many to be the manifesto of postmodern literature. बार्थ्स फोर्थ नॉवेल एक फेमस है गिल्स गोट बॉय. गिल्स गोट बॉय इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल जो 1966 में लिखा था. ये एक मेटा फिक्शन का एक प्राइम एग्जाम्पल है. गिल्स गोट बॉय और ये लिखा है जॉन बार्थ ने. एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फेमस वर्क है. पोस्ट मॉडर्निज्म फीचरिंग सेवरल फंक्शन डिस्क्लेमर्स इन द बिगिनिंग एंड द एंड. देन उसके बाद हमारे आते हैं सैमुअल बेकेट. सैमुअल बेकेट को ज़रूर अलग से पढ़ना है, उनके वर्क्स को. उसमें से वेटिंग फॉर द गोडोट, इसमें के डायलॉग भी पूछे गए, इसके ओपनिंग लाइन भी पूछे गए. अभी जो नेट दिसंबर 2023 का एग्ज़ाम है इसमें वेटिंग फॉर गोडोट के कैरेक्टर के लाइन या डायलॉग भी पूछे गए हैं. तो सैमुअल बेकेट का थिएटर ऑफ द अपसर्ड का ये फाइन एग्जाम्पल है. और वेटिंग फॉर गोडोट जो है फेमस और ज़रूर करके जाना है, जो लिखा था 1953 में. इसमें पोजो है जो राइटर कैरेक्टर, तो इन सबको ध्यान रखना है. देन बेकेट क्रिएट्स एन एंटायर, और सैमुअल बेकेट के अदर भी जो वर्क है जो कि एक सीरीज़ में आते हैं उनका सीक्वेंस भी पूछा गया है, तो उसे भी ज़रूर पढ़ना है. पर वेटिंग फॉर गोडोट को यकीनन बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है. देन इटालो कैल्विनो. इटालो कैल्विनो's novel If One Winter's Night, a Traveler, which is written in 1979, is an excellent example of meta narrative. इटालियो कैल्विनो का जो नॉवेल है ईफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर विच वॉज रिटन इन 1979, इट इज़ एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ. देखो 4-5 वर्क हमें पोस्ट मॉडर्न राइटर के दिए जाएंगे 4 ऑप्शन में, और उसमें एक होगा ईफ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर. और हमें सवाल पूछा, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि इसमें से कौन सा मेटा नरेटिव है या इसमें से कौन सा मेटा नरेटिव नहीं है. तो इसमें से कौन सा मेटा नरेटिव अगर आता है, और उसमें ऑप्शन में है इफ़ ऑन अ विंटर्स नेटिव ट्रैवलर. ओके, द बुक इज़ अबाउट अ रीडर अटेम्प्टिंग टू रीड अ नॉवल टाइटल इफ़ ऑन अ विंटर्स नाइट अ ट्रैवलर. ये लिखा है इटालो कैल्विनो ने. तो ये मेटा नरेटिव का एग्जाम्पल है. उसके बाद डॉन डेलिलियो, following an advertising executive in New York during the Nixon era. So Deleuze's Underworld, which is written in 1997, is an exceptionally fragmented narrative exploring the rise of global capitalism, the decline of American manufacturer, the CIA and civil rights and other themes. White Nose also famous of Don DeLillo. 5वें राइटर हमारे पोस्ट मॉडर्न के आ जाते हैं जॉन फाउल्स. जॉन फाउल्स का द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वुमन बहुत फेमस वर्क है. इसके कैरेक्टर करके जाने हैं, इसकी थीम, इसकी प्लॉट क्या है, इसकी स्टोरी एक हिस्टोरिकल नॉवेल है विद अ मेजर एम्फोसिस ऑन मेटाफिक्शन. और ये लिखा है जॉन फाउल ने. द फ्रेंच लेफ्टिनेंट्स वीमेन 1969. ये ऑथर के वर्क दिए जाएंगे और उसे अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन लगाना होगा. द बुक फीचर्स अ नरेटर हु बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. जो खुद नरेटर है वो बिकेम अ पार्ट ऑफ द स्टोरी एंड सेवरल डिफरेंट वे टू एंड द स्टोरी. उसके बाद हमारे फेमस पोस्ट मॉडर्न इरा के राइटर आते हैं जोसेफ हेलर. जोसेफ हेलर का कैच 2020, इट इज़ अ वेरी फेमस वर्क which comes in 1961, tells the many storylines out of chronological order, slowly building the story as new information introduce. Heller also employ paradox. So Heller का कैच 2020 उसके कैरेक्टर्स ज़रूर करके जाने हैं उसमें है. और हमारे महाराष्ट्र सेट एग्ज़ाम का बहुत ही फेमस राइटर है, मैं तो बोलूँगी फेवरेट राइटर है, गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस. इस पर एक क्वेश्चन मिलता है इनके मैजिक रियलिज्म पे, या जो 100 Years of Solitude किसका है, ऐसा ही क्वेश्चन बहुत बार बना है. सो द गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस फेमस वर्क इज़ 100 Years of Solitude. बुंदिया फैमिली है, बहुत सारी इसमें फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके नाम हमको सेम एक जैसे लगते हैं. बहुत सारी जनरेशन बुंदिया फैमिली की इसमें दिखाई गई है. तो 100 Years of Solitude विच इज़ इन 1967, वेरी फेमस वर्क ऑफ जी मार्क्वेस. इसे ज़रूर पढ़ के जाना है. उसके बाद फेमस राइटर आते हैं थॉमस पिंचन. थॉमस पिंचन्स ग्रेविटीज रेनबो बहुत ही फेमस वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, 1973 में आया था. इट इज़ अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर. यूजिंग अ कॉम्प्लेक्स फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर इट कवर द वेरियस सब्जेक्ट such as culture, science, social science, profanity, etc. Then Crying of Lot 49, it is also famous. Then Kurt Vonnegut, so it is a Slaughterhouse 5 is a famous work of him.
So it is one liner narrative which is main character has been unstuck in time. So the oscillating between the present and past वो stuck हो जाता है. No control over is the moment and emphasizing. उसके बाद हमारे 10वें आखिरी राइटर आ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न के. इसके साथ ही और भी जो पोस्ट मॉडर्न राइटर है जो फेमस है, ये सिर्फ 10 राइटर्स की लिस्ट है और उनके फेमस वर्क्स जो हमें करके जाने. उसमें डेविड फॉस्टर वॉलर आते हैं. सो वैलेस इन्फिनिटी जेस्ट 1996 में आया था. एम्बोडीज द पोस्ट मॉडर्निज्म थ्रू द इलेक्ट्रिक एनसाइक्लोपीडिक स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टर. सो एंड उनका और एक वर्क है द पेल किंग जो 2011 में आया था. सो डेविड फॉस्टर वॉलर हो, कर्ट वैनगेट हो, थॉमस पिंचन, गैब्रियल गार्सिया मार्क्यूस, जोसेफ हेलर, जॉन फाउल्स, डॉन डेलियो, इटालियो काल्विनो जिसका मेटा नरेटिव फेमस है. ये सब ऑथर को अच्छे से पढ़ के जाना है. इनके वर्क्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करके जाना है. इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियोज़ then like, share and subscribe.